Okay. Good morning, dear students. We are doing chapter number 22, financial statements with adjustments, and today this is the last lecture of my this chapter. And students, today we will discuss some practical questions. If you have any queries, first of all, I will solve your queries. Yes, students, if you have any queries, tell me. Akshay, Gurjeet, Hardik, Kashyap, Aman, sorry, Tarun. If you have any queries, we can discuss today. Yes, students. We will discuss question number 7. First of all, this is the query from use. Question number 7. Open page number 22.86. Question number 7. Extract the trial balance as at 31st March 2017 is as follows. Given information means first of all sundry debtors given here 1,02,000, bad debts 1,400, provision for doubtful debts 3,400. This information is given in trial balance. Okay, तो ये trial balance में हमेशा आपके पास given होगा. Now additional information is a debtor of rupees 2,000 could not be recovered. मीन्स ये जो डेटर है 2000 की जो रिकवर नहीं हुई ये एग्जैक्टली फर्दर बैड डेट्स है और इट इज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स. मीन्स आगे भी मेंटेन करके रखना है न्यू प्रोविजन जो कि 5% है. एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट 2%. डिस्काउंट मीन्स जो भी डेटर्स उसके बाद पेंडिंग रह जाएंगे जब भी वो पे करते हैं तो जब वो कैश में पे करते हैं तो तब भी फर्म क्या करती है उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करवा देती है. तो वो भी हम पहले से ही प्रोविजन लेके चलेंगे क्योंकि वो भी एग्जैक्ट अमाउंट आपके पास नहीं आएगा. सो हाउ दीज एडजस्टमेंट्स विल बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या इसकी ट्रीटमेंट होगी एंड सेकेंड थिंग बैलेंस शीट. Okay, students, this is the given information. First of all, bad debts. 2 bad debts in debit side. जो भी bad debts given है आपने ये जो ट्रायल बैलेंस में given है उसको लेना है इनर कॉलम में 1400. You will add further bad debts जो कि exactly adjustment में हुए हैं. Adjustment में given है debtors of rupees 2000 could not be recovered. It means this is the further bad debts. Plus करेंगे further bad debts rupees 2000. Okay, 3,400. Right. Next, it is decided to maintain provision for doubtful debts. आपको प्रोविजन बना के रखना है 5%. ओके, तो डेटर्स आपके पास गिवन है 1,02,000. ये रफ वर्क है आपके पास. 1,02,000 यू विल डिडक्ट फर्दर बैड डेब्ट्स. जो फर्दर बैड डेब्ट्स है उसको आप डिडक्ट करेंगे डेटर्स में से. अमाउंट विल बी 1 लाख. यू विल मेंटेन और क्रिएट न्यू प्रोविजन ऑन 1 लाख. दैट इज द 5%. ठीक है, 5% आप इस पे मेंटेन करेंगे. It will be 5,000. This is a new provision. You will add this new provision in bad debts. Okay, this is also the expense you can say क्योंकि अभी ये new provision हमें बना के रखना है. ये भी डेबिट साइड में ही आपको आएगा. So you will add this new provision in bad debts. 0,045 plus 3 8. 8,400 आ गया आपके पास. And you have old provision also given in trial balance. You will deduct this provision from this amount. जो old provision given है आपके पास वो आप इसमें से deduct कर दोगे. ये आपके पास given है trial balance में 3,400. Okay, so amount will be 5,000. Exact amount 5,000 you will show in debit side of the profit and loss account. ये तो थी profit and loss account की treatment. Okay, अब इसको balance sheet में कैसे show करना है. सन्ड्री डेटर्स आपके पास जो है वो किसमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में. यू विल शो डेटर्स इन एसेट साइड. ये एसेट साइड होती है ना आपकी. डेटर्स अमाउंट इज 1,02,000
एग्जैक्ट अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिडक्ट फर्दर बैड डेट। जो एडजस्टमेंट में गिवन इन्फॉर्मेशन है उन्हीं का ट्रीटमेंट आपको 2 टाइम्स करना है, ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया। और जो ट्रायल बैलेंस में आइटम्स गिवन है उनका ट्रीटमेंट ओनली 1 टाइम होगा, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया। अभी क्या है कि एडजस्टमेंट में 2 आइटम्स थी, 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्दर बैड डेट्स एंड सेकंड इज न्यू प्रोविजन। Okay, so you will deduct these 2 items from the debtors. First of all, you will deduct further bad debts. Further bad debts ये आपके पास थे 2000 के, amount will be 1 lakh. Then you will deduct new provision. New provision हमने यहाँ create किया था 5000 से. Okay, amount is 95,000. बट अभी एक और प्रोविजन इसमें क्रिएट करना है, दैट इज द प्रोविजन, न्यू प्रोविजन यहाँ गिवन है आपके पास, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट 2%। ठीक है, जितने डेटर्स अब आपके सामने नजर आ रहे हैं 95,000 से, इन 95,000 में भी जब ये लोग पे करेंगे ना तो इनको भी हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना होता है, कई बार देना पड़ सकता है। तो दैट्स वाई हम पहले इसको प्रोविजन बना के चलते हैं इसका। तो 95,000 का ही यहाँ पर 2% डिस्काउंट के लिए भी आप लेके चलेंगे प्रोविजन। You will create new provision for discount on debtors. ये आपका सेकेंड प्रोविजन है, इसको आप सेपरेटली शो करेंगे इन डेबिट साइड, क्योंकि ये भी आपका प्रोविजन है। सो दैट्स वाई यू विल शो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इसका जो ट्रीटमेंट है यू विल शो इन डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। जो इसका पहला ट्रीटमेंट है वो डेबिट साइड में आ जाएगा। आप इसमें से यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेना, 0 0 0 5 to the 10 19. This is the amount is 1900. Okay, 1900 you will show in debit side of the profit and loss account. This is the first treatment. And secondly you will treat in balance sheet, you will deduct this provision for discount, provision for discount you will deduct from the debtors 1900. आप इसमें से इसको डिडक्ट करके दिखाएंगे, अमाउंट जो आएगा that will be 93,100. 93,100 you will show in outer column. ये डेटर्स का अमाउंट है आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की ट्रीटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी आज की एक फर्स्ट क्वेरी है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, जो भी ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसकी सिंगल ट्रीटमेंट है, और जो भी आपके पास एडजस्टमेंट में गिवन है उनके डबल ट्रीटमेंट है। एंड जैसे हमने इसको ट्रीट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल शो बैड डेब्ट्स इन डेबिट साइड, 2 बैड डेब्ट्स 1400, फर्दर बैड डेब्ट्स यू विल ऐड इन दिस अमाउंट। फर्दर बैड डेब्ट्स आपके एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं 2000 से। ओके, आप इसको ऐड करेंगे, अब 3400 आ गया। यू विल क्रिएट न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन जब आप क्रिएट करते हो स्टूडेंट्स, तो वो आप फर्दर बैड डेब्ट्स को माइनस करके उसकी अमाउंट में से करते हो, यानी कि यहाँ पर क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्ट करना है फर्दर बैड डेब्ट्स को डेटर्स में से। डेटर्स कितने के हैं, 1,02,000। यू विल डिडक्ट 2,000 फ्रॉम द 1,02,000, अमाउंट विल बी 1 लाख। 1 लाख पे आपने न्यू प्रोविजन क्रिएट किया 5% के अकॉर्डिंगली, जो कि था 5,000। ओके, दिस न्यू प्रोविजन यू विल ऐड इन दिस अमाउंट। एंड सेकेंडली ये जो 2 आइटम्स थी एडजस्टमेंट में थी 2,000 and 5,000, you will deduct these 2 items from the debtors in asset side in second treatment, जो इसका second treatment होगा। ओके, यहाँ तक 8400 आ गया। देन ओल्ड प्रोविजन आल्सो गिवन इन योर क्वेश्चन इन ट्रायल बैलेंस। ओल्ड प्रोविजन जो है अब उसकी नीड नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी विल डिडक्ट दिस प्रोविजन फ्रॉम दिस अमाउंट। हमने इसको इसमें से माइनस कर दिया, इसके सिंगल ट्रीटमेंट है ओल्ड प्रोविजन की भी और बैड डेब्ट्स की भी, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ओके, और ये 2 आइटम्स आपकी एडजस्टमेंट में थी, इसलिए इनकी डबल ट्रीटमेंट की है। एक बार यहाँ प्लस किया है और दूसरी बार यहाँ डेटर्स में से इसको माइनस किया है। ठीक है, देन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है वो 95,000, जितना डेटर्स आपके पास एग्जैक्टली बाद में आ जाते हैं, जिनको हमें जो हमें अभी रिसीव होने के चांसेस हैं, उनके ऊपर आपको ये प्रोविजन क्रिएट करना है। वो प्रोविजन था 2%, हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट करके निकाला है 1900। यू विल शो इट सेपरेटली, इसको सेपरेटली शो करना है टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, क्योंकि फर्दर अलग से आपका प्रोविजन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल शो द टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1900 इन डेबिट साइड, लेकिन सेकेंड इफेक्ट जो इसका आएगा वो आएगा डेटर्स में से, आपको इसको डिडक्ट करके दिखाना है 1900। यू विल डिडक्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1900 फ्रॉम द डेटर्स, तो अमाउंट विल बी 93,100। ओके, ये जस्ट एक आपकी एडजस्टमेंट थी, आपको इसको शो करके दिखाना था। ओके,
नेक्स्ट आपकी जो क्वेरी है दैट इज द CGST एंड SGST, ओके, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो ये आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ही है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ही ये गिवन है आइटम्स, इनपुट CGST एंड आउटपुट CGST, इनपुट SGST एंड आउटपुट SGST। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं कि क्या है इंफॉर्मेशन। आई एम रीडिंग होल क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन देख रही हूँ, इसमें अगर आपकी कोई अदर प्रॉब्लम भी होगी वो भी इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। सो ओपन दिस पेज नो, पेज नंबर 22.86, इसी पेज नंबर पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018 from the balances extracted of Messrs Rahul Sons. Also prepare balance sheet. Okay, this is your question. मैं इसमें एक एक आइटम इसमें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कौन सी आइटम किस साइड आपको शो करनी है, आपको भी इसी वे में आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक, स्टॉक जो है आपका ओपनिंग स्टॉक है, यू विल शो ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट इन डेबिट साइड, wages debit side in trading account, salary debit side in profit and loss account, purchases debit side in trading account, sales return you will deduct this amount from the sales, okay, और sales आपकी credit side में होती है, sundry debtors you will show in the asset side, discount allowed debit side of the profit and loss account, insurance debit side of the profit and loss account, rent rates and taxes debit side of the profit and loss account, fixtures and fittings this is the asset, you will show in the asset side of the balance sheet, trade expenses this is the item of the profit and loss account, you will show in debit side, कोई भी expenses है वो debit side of the profit and loss account, then bad debts also the debit side in the profit and loss account, drawings you will deduct this drawings from the capital में से आपको उसको deduct करके show करना है, then repairs and renewals this also is the expense, so that's why you will show this item also in debit side of the profit and loss account, traveling expenses debit side of the profit and loss account, postage debit side of the profit and loss account, then legal fees debit side of the profit and loss account, bills receivable this is the asset, you will show this asset in the asset side of the balance sheet, then building also asset, you will show in the asset side of the balance sheet, then input CGST and input SGST। मैंने आपको बोला था कि इनको हम कंपेयर करते हैं ना, आफ्टर कंपेयरिंग वी विल डिसाइड कि हम इसको यहाँ किस साइड शो करना है। यहाँ इनपुट CGST इनपुट SGST एंड आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST सारा कुछ गिवन है, ओके। देन क्रेडिट बैलेंस में देखेंगे सेल्स 1,80,000 you will show sales in the credit side of the trading account, purchase return you will deduct this amount from the purchases, discount received credit side of the profit and loss account, provision for bad debts ये आपका old provision है, you will deduct, जैसे मैंने यहाँ पर deduct करके दिखाया है, you will deduct this old provision from the bad debts, okay। अगर suppose कर लो आपके पास bad debts given ही नहीं होते, कुछ नहीं given होता, only single item given है, old provision given है आपके question में trial balance में, then you will show this old provision in the credit side of the profit and loss account, क्योंकि हमने यहाँ deduct किया है, actual में ये item जो है वो credit side की है, ठीक है, अगर ये single item आती है आपके पास। Then capital you will show in the liability side of the balance sheet, bills payable liability of the balance sheet, then the commission received you will show in the credit side of the profit and loss account, rent received it means credit side given hai, so you will show in the credit side of the profit and loss account, loan this is the liability, output CGST and output SGST also given, okay। तो मैंने एक एक आइटम आपको यहाँ क्लियर की है कि कौन सी आइटम किस अकाउंट की है। नाउ द एडजस्टमेंट्स, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1,000 जो रिसीव्ड इन एडवांस होगा यू विल डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम द कमीशन, क्योंकि पहले से ही रिसीव हो गया है, तो हमें सिर्फ जो अकाउंट बनाने होते हैं वो सिर्फ अपने करंट ईयर के बनाने होते हैं। अगर हमें कोई नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई भी आइटम गिवन होती है एडजस्टमेंट में, तो हम उस आइटम को हमेशा माइनस करते हैं, ये बात, ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख लो। तो ये कमीशन जो रिसीव्ड इन एडवांस दिस इज बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, तो ये नेक्स्ट ईयर की हमने पहले ही रिसीव कर लिया, तो यू विल डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम द कमीशन, फर्स्ट ट्रीटमेंट। सेकेंडली, जब तक ये काम हम कर नहीं देते तब तक हम इस कमीशन को अपने एज ए लायबिलिटी शो करेंगे। सेकेंड ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स हैं, इसकी दो ट्रीटमेंट्स हैं, तो जिसका सेकेंड ट्रीटमेंट है वो क्या है, यू विल शो दिस अमाउंट इन द लायबिलिटी साइड, ओके। सेकेंड, रेंट रिसीवेबल ₹2,000 subject to levy of CGST and SGST at the rate 9% each। तो बेटा यहाँ पर आपको पहले एंट्री मैंने बताई थी जब हमने इसके एडजस्टमेंट्स की थी, तो
एंट्रीज में आपने किया था रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एक मिनट, यहाँ अक्रूड है, सॉरी रेंट रिसीवेबल है ये 2000, ये 2000 जो अमाउंट है ये अक्रूड है, रिसीवेबल है अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो एंट्री विल बी अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, वैसे ही एंट्री आपकी ये होती है, बट इसमें यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑल्सो इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम एंट्री की जो इसमें करेंगे वो एंट्री होगी आपकी, नोट कर लो आप एंट्री, accrued interest, sorry accrued क्या है ये, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पर होगा टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट गिवन है 9% पर एनम। अमाउंट विल बी 2000 गिवन है ना रेंट में, तो यू विल शो 2000 इन रेंट, or you will calculate 9% on 2000, it will be 180, 180 ऐड कर दो इन तीनों को, आपका अमाउंट बनेगा 360, 360, ओके 2360, ये एंट्री आपको इसमें करनी है। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो जो ये इनपुट सॉरी आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी है वो इंक्रीज हो जाएंगे बाय 180, 180 से वो अब आपके इंक्रीज हो जाएंगे, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट यू विल डिडक्ट, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसका क्या ट्रीटमेंट मैं बता देती हूँ। This is the question number 8. By rent कितने का गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, अमाउंट इज 6000, okay you will deduct accrued rent from 6000, 2000 आप डिडक्ट करेंगे, ओके फर्स्ट ट्रीटमेंट इसका, ठीक है। और सेकेंडली यू विल शो इन द बैलेंस शीट, क्योंकि ये एक्रूड है तो आपके पास ये बनेगा एसेट, बैलेंस शीट में इसको दिखाते हैं, बैलेंस शीट में आप दिखाओगे इन एसेट साइड एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट के सामने देख लो अमाउंट गिवन है 2360, नाउ यू विल शो 2360 नॉट 2000, आप इंक्लूडिंग जीएसटी इसमें आप इसको शो करना है एक्रूड रेंट को, ठीक है। अब जीएसटी का सिंगल, जीएसटी भी आपका एडजस्टमेंट में है ना, 2000 की फर्स्ट ट्रीटमेंट, 2000 की सेकंड ट्रीटमेंट, ओके 2000 इसमें इन्वॉल्व है। सेकेंडली जीएसटी, जीएसटी की एक ट्रीटमेंट इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि हर एडजस्टमेंट का मैंने कहा ना टू टाइम्स ट्रीटमेंट है, तो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी यू विल ऐड 118 in output CGST and 180 output SGST। आपके क्वेश्चन में आउटपुट CGST की मैंने 15,000, अब आप इसको 180 से ऐड कर देंगे, ऐसे ही आउटपुट SGST, CGST एंड आउटपुट SGST 15,000 प्लस 180, अब आपका जो अमाउंट हो जाएगा दैट विल बी 15,180, 15,180, ठीक है। इसको अब आप कंसीडर करोगे, तो यहाँ जीएसटी का भी डबल ट्रीटमेंट हो गया और एक्रूड रेंट का भी डबल ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। जीएसटी का ये आप आगे देखते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 एंड इंश्योरेंस प्रीपेड 800, बट स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको बता दूं सैलरी पे एग्जाम्प्ट होता है ना जीएसटी, ये यहाँ पर आपको जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी आप यू विल डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी, सैलरी आप कहाँ शो करते हो, डेबिट साइड में, सॉरी ऐड सैलरी आउटस्टैंडिंग में पेंडिंग है, दैट पर्टिकुलर अमाउंट बिलोंग्स टू करंट ईयर, इसी साल की थी पर अभी पे नहीं की है और ये अभी पेंडिंग है सैलरी है आपकी, सैलरी आपके पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो कितने से है 8000 और आउटस्टैंडिंग है 1000 से, 8000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी
1000 आप इसको ऐड करके दिखाएंगे 9000 से। सेकंड ट्रीटमेंट, यू विल शो आउटस्टैंडिंग सैलरी इन लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में आप दिखाओगे बाय 1000, क्योंकि यहाँ कोई जीएसटी नहीं है तो इसलिए हमने कोई एंट्री भी नहीं करी है और कोई जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं किया। इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका जो है इंश्योरेंस पहले देखो किस साइड गिवन है आपके पास। इंश्योरेंस 3200 से डेबिट साइड, ओके। तो प्रीपेड यू विल डिडक्ट, आप प्रीपेड को हमेशा क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग आपका ऑलवेज ऐड होता है और प्रीपेड माइनस होगा। तो यहाँ लिखेंगे टू इंश्योरेंस माइनस प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस 3200 से गिवन है इंश्योरेंस और प्रीपेड कितने से गिवन है 800, माइनस कर दीजिए, अमाउंट विल बी 2400, यू विल शो इन डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड ट्रीटमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी क्या हो जाती है, एसेट 800 से यहाँ पर भी इसको शो करना है और इस पे भी कोई जीएसटी आपने इंक्लूड नहीं करना है। देन देखिए फोर्थ पॉइंट इज फॉर फर्दर बैड डेट्स 1000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2%। तो ये सेम आपका वही ट्रीटमेंट है जो अभी हमने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में। तो मैं आपको ओरली बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बैड डेट्स लेना है, बैड डेट्स आपके क्वेश्चन में गिवन है 2000, ओके। यू विल ऐड फर्दर बैड डेट्स इन द 2000, फर्दर बैड डेट्स आपके पास कितने के हैं 1000 के, तो 2000 में 1000 ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3000 कर ही देते हैं। बैड डेट्स की ये देख लीजिए एडजस्टमेंट, तो बैड डेट्स कितना है 2000, ओके। फर्दर बैड डेट्स कितने से हैं 1000 ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट्स 3000। न्यू प्रोविजन आपके पास गिवन है 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स देखना जरा कितने से हैं आपके पास 82,000, 82,000 माइनस फर्दर बैड डेट्स 1000, 81,000। तो यू विल क्रिएट न्यू प्रोविजन जो कि 5% है आपके पास, 81,000 पे न्यू प्रोविजन आप क्रिएट कर लो। फोर 050 ऐड कर दो यहाँ पर न्यू प्रोविजन 05047 अब देखो इसमें ओल्ड प्रोविजन गिवन है आपके पास, हाँ जी 2500 माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है 2500, ये लेस करने के बाद आपके पास आ जाएगा 4550। ये तो ट्रीटमेंट था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी इसका जो ट्रीटमेंट आपको बैलेंस शीट में करके दिखाना है, डेटर्स, डेटर्स आपके पास थे 82,000, you will deduct first of all further bad debts 81,000, you will deduct new provision, न्यू प्रोविजन आपके पास है 4050, माइनस कर देंगे इसमें से 81,000 माइनस ये हो जाएगा 76, ओके 76,950। अब इसमें डिस्काउंट का भी प्रोविजन है एक आगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब इसके ऊपर आपने क्रिएट करना है वो 2%, 76,950 you will create 2%, so you will calculate 2% on this amount, 0 से 0 15, that is a 1539। पहले तो यहाँ दिखाओ ट्रू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेबिट साइड में कितने से 1539, सेकेंडली यहाँ से डिडक्ट करो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1539, ये माइनस हो जाएगा अब आपका,
ठीक है, जो अमाउंट आएगा माइनस करके वो आपने यहाँ पर शो कर देना है। ओके, आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। यू विल शो फर्स्ट ट्रीटमेंट, यू विल शो इन ट्रेडिंग अकाउंट इन क्रेडिट साइड, सेकेंडली यू विल शो क्लोजिंग स्टॉक इन द एसेट साइड, यहाँ एसेट साइड भी आप शो करते हो, ठीक है। देन है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन यू विल कैलकुलेट 6% ऑन बिल्डिंग और you will show in debit side of the profit and loss account. Secondly, that amount you will deduct from the building in asset side. Okay, okay. अभी GST का देख लेते हैं फटाफट से। इनपुट GST आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 10,000 और आउटपुट गिवन है, मैंने अभी टोटल करके बताया था आपको 15,180। सेम ऐसे ही इनपुट्स SGST आपके पास गिवन है 10,000 और वो आउटपुट SGST आपके पास गिवन है 15,180। तो बेटा जब भी आउटपुट आपका क्या है यहाँ पर ज्यादा है, एक्सीड कर रहे हैं ना, जब भी आउटपुट ज्यादा होगा तो इट विल शो इन द लायबिलिटी साइड, ये बताया था आपको। जब इनपुट एक्सीड होगा तो इट विल बी शो इन द एसेट साइड। अब यहाँ एक्सीड क्या कर रहा है, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, ये दोनों एक्सीड कर रहे हैं। तो अब आपको इसको कहाँ शो करना है, लायबिलिटी साइड। ये देखो लायबिलिटी साइड है आपकी ये वाली, आप इसको कैसे शो करेंगे, आउटपुट CGST कितने से है आपके पास 15,180, यू विल डिडक्ट आउटपुट इनपुट CGST, इनपुट CGST आप इसमें से डिडक्ट करके दिखाओगे 10,000, अमाउंट विल बी 5,180 as it is output SGST also you will show in this side minus input SGST 10,000 5,180, बस ये ट्रीटमेंट है GST का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पूरा क्वेश्चन देख लेना है। क्वेश्चन में अगर कहीं भी GST इनपुट या आउटपुट आपका कहीं पर भी और ऐड हो रहा है उसको इसमें ऐड जरूर करना है। जैसे यहाँ पर 180 से एक्रूड रेंट का था हमारे पास, तो वो हमने इसमें ऐड किया है। देन वी विल ट्रीट और वी विल कंपेयर, हमने इसको कंपेयर जरूर करना है। अगर आउटपुट CGST इज एक्सीड इनपुट CGST वी विल शो इन द लायबिलिटी साइड, इफ इनपुट CGST एक्सीड देन इट विल बी शो इन द एसेट साइड। अगर सपोज कर लो कि इनपुट ज्यादा होता तो फिर हम उसको शो करते हैं एसेट साइड में। क्लियर है? तो ये आपकी आज क्वेरीज थी। नाउ यू विल कंप्लीट दिस चैप्टर, आज इसको आप कंप्लीट करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कल से स्टार्ट कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।